welcome to our talk show Rubaru. I'm Neha Chahan, and today we're going to talk about the traveling content creation. We all love traveling. We love to explore new places, new things, new persons know about their language, their culture, and heritage. And in recent years, we have seen that influencers have teach us a lot about different cultures and different new places that we wanted to explore in this India. Like we don't want to go abroad. That is why today we are joining with Shiva Yadav sir, who is a storyteller and also a travel content creator. We welcome you, sir. Hi Neha, thank you so much for having me. So my very first question to you is that how your journey of this content creation started and how you became the storyteller of showing different heritage. Because I have seen that in your videos that you always wanted to discover the culture and the heritage of this indigenous people of their different type of states, including all other type of communities. So how's your journey started? Let me tell you about my background. So my Okay. background has mainly been corporate. I have been Hmm. in sales for quite a few years. I was into selling software technology for large multinational US based companies. Okay. So I did that for a few years. But साथ में I always used to do like theater. I've been doing theater and drama Okay. in school and then college, and then even when I was in a job, whenever I would get time, बॉम्बे में आई वाज देयर मोस्टली फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वहाँ पे भी आई यूज्ड टू डू प्लेस. तो वो एक अंदर एक वो कहानियाँ सुनाने का और एक टू Right. इंटरेक्ट विद पीपल वो हमेशा से था. बट आई नेवर न्यू व्हाट टू डू विद इट. एंड द अदर थिंग दैट आई ऑलवेज लव्ड वाज ट्रैवलिंग. तो कुछ साल जॉब करते करते फाइनली आई रियलाइज्ड कि this is not something that I can do for my entire life. Like I Hmm. started imagining that again, like 20 years down the line also will I be doing the same thing. तो Right. मन में आया कि ये तो बहुत स्कैरी थॉट है. तो ये थॉट आई तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि अब क्या करूं अगर ये नहीं तो व्हाट. सो देन आई थॉट व्हाई नॉट आई ब्रिंग टुगेदर माय टू इंटरेस्ट्स, राइट, व्हिच इज Storytelling. स्टोरी टेलिंग एंड ट्रैवलिंग. अब उसमें क्या करना है वो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, Hmm. राइट. आई हैड नेवर फेस्ड अ कैमरा बिफोर. I didn't know editing. I didn't know how to write a script. I didn't know like anything related to video making. But I quit my job around 3 years ago, Okay. and I decided I'll make something. ये पता था कि travel content होगा, ये Hmm. पता था कि stories होंगी, Hmm. but I never knew कि what kind of stories Right. and what kind of content will I make. The only thought was that it has to be different from what people are telling, because there are a lot of people who are telling travel content and they are showing places, Hmm. right, and they are Right. showing beautiful places, but a lot of people are doing that. But ये travel जब मैंने करना शुरू किया और जगहों पे जाना शुरू किया तो मुझे ये realize हुआ कि इसमें एक gap है. Like people go to a place, they show a beautiful place, like they'll show beautiful mountains, they'll show beautiful, deserts, beautiful, Lake, हाँ beaches. सब कुछ. Hmm. बट उन जगहों को यूनिक कौन बनाता है? मतलब यही पहाड़ स्विट्जरलैंड में भी है, यही पहाड़ इंडिया में भी है, बट व्हाट मेक्स इट यूनिक? इट्स द कल्चर एंड स्टोरीज बिहाइंड इट. एंड वो कल्चर और स्टोरीज कहाँ से आते हैं? इट कम्स फ्रॉम द पीपल. People. सो उन पीपल की कहानी क्या है, उनकी फोक टेल्स क्या हैं, उनका बैकड्रॉप बिहाइंड द सीन, उनकी क्या कहानियां हैं, उनकी माइथोलॉजीज क्या हैं. बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट Hmm. इंडिजिनस कल्चर्स. Hmm. तो हमारे इंडिया में तो इतने इंडिजिनस कल्चर्स हैं, मतलब ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ देम. एक एक स्टेट में ही शायद कई सौ इंडिजिनस ट्राइब्स एंड कम्युनिटीज रहती हैं और उनकी अपनी स्टोरीज हैं, अपनी कहानियां हैं. और दे हैव देयर ओन माइथोलॉजिकल Hmm. स्टोरीज जो Right. कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वेरी होती हैं, राइट. जैसे अब हिंदुइज्म की बात करेंगे तो Hmm. जहाँ पे बुद्धिज्म ऐड हो जाता है Hmm. तो उसमें ओवरलैप आने लग जाते हैं स्टोरीज में, राइट. दे वुड हैव सिमिलर स्टोरी बट इट विल Hmm. बी लिटिल डिफरेंट. Right. कहीं और थोड़ा आगे जाओगे, कहीं और दूसरी ट्राइब्स के पास जाओगे तो दे विल हैव समथिंग, दे विल हैव डिफरेंट नेम्स, बट आपको रियलाइज होगा कि यार कुछ कुछ Hmm. कहानियां सिमिलर हैं. Similarities. तो वो चेंज, तो वो क्या है? बिकॉज फॉर अस इन लाइक town life, at least when we talk particularly about Hinduism and a few other Hmm. mature cultures, we have everything written. हमारी कहानियां लिखी हुई हैं. Right. We have scriptures We and have information. scriptures, we have our things Hmm. documented. बट पर्टिकुलरली इंडिजिनस कल्चर्स और ट्राइब्स और विलेजेस की बात करें तो उनके पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. सब कुछ उनके दादा परदादाओं से हजारों साल से सुनता आ रहा है और वही चला आ रहा है. उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. Hmm. बट अब प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि विद टेक्नोलॉजी कमिंग एवरीवेयर, तो आज की जनरेशन को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो कहानियां सुनने में.
उनको कोई शौक नहीं है कि अपने दादा दादी के पास बैठे वो पूछें कि जो फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं उनके पीछे का रीजन क्या है। सब लोग एंजॉय करने पहुंच जाते हैं, नाम पता है, एक लोकल नाम होगा, बट उसकी स्टोरी क्या है, Right. व्हाई इज दैट बीइंग सेलिब्रेटेड, उसकी एक माइथोलॉजिकल कहानी होगी। यूजुअली हमारे सारे फेस्टिवल्स इफ यू सी वो सब खेती से रिलेटेड होते हैं। हार्वेस्टिंग का टाइम होगा या बुआई का टाइम होगा, उसी के आसपास हमारे सारे फेस्टिवल्स होते हैं पूरे इंडिया में। बाकी ट्राइबल फेस्टिवल्स भी वैसे ही होते हैं क्योंकि इट इज रिलेटेड टू योर फूड लाइफ, योर डे टू डे लिविंग सर्वाइवल, तो उसी Right. से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। तो जब मैंने वहां जाना शुरू किया और मैंने देखना शुरू किया कि इट इज नॉट दैट सिंपल, इनकी पीछे की हजारों साल पुरानी स्टोरीज हैं जो कोई पता नहीं करने की कोशिश करता। तो वो एक दो जगह पे गलती से मुझे पता चली। Okay. देन आई रियलाइज्ड कि व्हाई नॉट आई डू दिस फोकस्ड डेडिकेटेडली। To educate and aware the people about the हाँ, culture. मतलब टू टेल दो स्टोरीज इन अ फन वे, मतलब उसके बारे में शायद कुछ लोग डॉक्यूमेंट्रीज कुछ कुछ के बारे में बनाते हो, पर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए बहुत पर्टिकुलर ऑडियंस होती है। इट डजंट गो टू द पब्लिक दैट आई वांटेड टू गो टू, व्हिच इज Right. लाइक टुडेस जनरेशन, सो A दैट दे short कैन। span of हाँ, like that we were करेक्ट करेक्ट। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि वही स्टोरीज को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फन वे में, वीलॉग काइंड ऑफ अ वे में बना के, उसको एक ट्रैवल वीलॉग का शेप दे के, एक डॉक्यूमेंटरी की खिचड़ी बना के मैं एक 10 Okay. मिनट की स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ। And तो that's how your journey started. दैट इज हाउ इवेंचुअली आई लेड टू मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। Okay. So do you how do you work about that if we compare the modern communities and the traditional communities? So do you find any similarities as we talked about in our first question, or any difference in both of them? ट्रेडिशनल कम्युनिटीज एंड Modern communities. मॉडर्न कम्युनिटीज, उसमें एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है व्हिच इज दैट every community now is becoming modern, Modern. right? Because with the advent of technology, अब कोई level field है सबके लिए, everybody has the same information, everybody has the same exposure, and of course India is developing, right? India is a booming economy, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, Right. तो जैसे जैसे पैसा आ रहा है तो चीजें, ट्रेडिशंस उस अनफॉर्चुनेटली उसके साथ साथ थोड़े खत्म खोते होती जा जा रहे रही है। और जैसा मैंने बोला कि ये ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ी सी इंडिजिनस कम्युनिटीज के लिए इसलिए है क्योंकि उनके पास रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो वो जैसे ही इफ दे हैव देयर ओन ट्रेडिशनल होम, फॉर एग्जांपल एक बैम्बू का किसी ने घर बना रखा है, या छत्तीसगढ़ में मिट्टी के घर बनते हैं और पत्थर के घर बनते हैं, अब उन्होंने अगर एक बार उसको कंक्रीट का घर बना दिया, राइट, सो द एंटायर हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ दैट हाउस मेकिंग, will be lost. इट विल बी लॉस्ट एंड इट इज गेटिंग लॉस्ट। मतलब वो घर ढूंढने ही मुश्किल हो गए हैं। बहुत एक्सट्रीम अंदर अंदर गांव में जाके कोई 10-20% बचे हैं कि वो घर देखने को मिल जाए क्योंकि सब धीरे धीरे बैम्बू की जगह टीन आती जा रही है, स्टोन्स की जगह कंक्रीट आती जा रही है, मिट्टी की तो ऑब्वियसली कहाँ मिट्टी यूज करता है कोई, राइट, तो उसकी जगह पे भी either they यूज मॉडर्न थिंग्स और मटेरियल्स या ईंटें यूज करने लग जाते हैं। तो मतलब एंड इंटरेस्टिंगली जैसे मैंने बोला हर चीज की कहानी होती है, उनके घरों की भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, हिस्ट्री है। जैसे फॉर एग्जांपल मणिपुर के जो घर होते हैं उनको कैबुल लामजाओ बोलते हैं। Okay. ओके, सो दे आर लाइक ऊपर से थैच्ड रूफ होती है, नीचे से दे हैव अ पर्टिकुलर राउंड स्ट्रक्चर एंड देन आगे दे हैव अ वेरांडा। तो उसके अंदर जो ऊपर उनका एक स्ट्रक्चर बनता है वो बोलते हैं कि उनके डेटी को प्रणाम करने का एक स्ट्रक्चर है, और उससे थ्रू द सन, जैसे सन मूव करता है ऑन द वरांडा, वो किस पोजीशन पे, उससे दे यूज्ड टू टेल टाइम। Wow. और उससे उनकी माइथोलॉजिकल स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि वो हमारे गॉड ऐसे थे, ये थे, उनकी कहानी है, ये वो, तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो अब वो घर है ही नहीं कहीं, वो कहीं देखने को ही मिलेंगे, लामजाओ आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, खाली म्यूजियम में एक दो किसी ने प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो वो ओवरलैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है, बट अगर बाय कोर बात करें तो ऑब्वियसली देयर इज अ large difference. Like communities, indigenous communities are still very very close to each other. They are very very family bound, And very community united. bound. हाँ, उनका जैसे मैं छत्तीसगढ़ बस्तर में था, तो वहां पे कई गांव में अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है। तो हर कोई अपनी अपनी चीज उगाएगा, कोई कोई चावल उगाएगा, कोई गेहूं उगाएगा,
कोई कुछ पत्ते सब्जियां उगाएगा, कोई कुछ फ्रूट्स उगाएगा, और वो 15 दिन में जब उग जाते हैं उसके बाद दे विल एक्सचेंज। उनको उनके यहाँ से मार्केट जाना इज लाइक 20 किलोमीटर्स अवे, Oh. और वो भी हफ्ते में एक बार लगता है, राइट? दे हैव वीकली मार्केट्स। तो वहां पे भी सबके लिए जाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जाना खर्चा है, आना खर्चा है, एंड देन Right. लाना चीजें। सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट, आपस में मिलके सब चीजें उगाते हैं, अभी भी होता है, राइट? Amazing. तो दे डू दैट, सो दैट इज अ ब्यूटी दैट स्टिल प्रिवेल्स, बट लाइक आई सेड कि वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। So how can we protect them from being like, lost their heritage or their culture or their tradition? Is there any way? बहुत मुश्किल है इसको आंसर करना, क्योंकि इट इज लाइक सेइंग कि हम तो अपने टाइम पे मॉडर्नाइज हो गए, आप मत हो, That is also wrong that to है say ना? that. कि हम तो अब कंक्रीट के घर में रहते हैं, कंफर्टेबली रहते हैं, आप अपने घर वैसे ही रखो। Right. तो मतलब दिस इज लाइक अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, बट एक बैलेंस सिर्फ यही हो सकता है कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी कहानियों के थ्रू, कि एटलीस्ट देयर शुड बी एन अवेयरनेस, सबको पता होना चाहिए, एटलीस्ट मालूम तो हो, चलो वो चीजें वैसी नहीं रही, बट एटलीस्ट मन में पता होगा कि हाँ मतलब इस तरह की चीजें हैं या थी, और ये उनके रीजन थे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें कुछ कुछ तरीके से प्रिजर्व्ड रहेंगी। जैसे अभी एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अरुणाचल में एक आदि ट्राइब है, कोर जंगल में जाके एक छोटा सा गांव है पांगिन करके, और वो लोगों ने एक क्लीन मॉडल विलेज बनाया, उनकी पंचायत ने डिसाइड करके ये डिसाइड किया कि हम पूरा गांव साफ करेंगे, और लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जो डिस्ट्रिक्ट डीसी ने डिसाइड किया उनका इनिशिएटिव के साथ मिलके, पंचायत के साथ मिलके, कि we'll make it clean village, and they did that, they transformed it। उन्होंने सुंदर से बैम्बू स्ट्रक्चर्स बनाए, बैम्बू के ब्रिजेस बनाए अपने गांव में, सुंदर सुंदर चीजें बनाई। सो नाउ एटलीस्ट विद दीज थिंग्स, इवन दो दे आर गेटिंग मॉडर्नाइज्ड, उनके मन में एटलीस्ट ये है कि हाँ, हम यहाँ पे 3-4 घर तो ऐसे होंगे जो लोकल रखेंगे, हम बैम्बू की चीजें बनाएंगे ताकि कोई आए देखने के लिए, मैंने कोई बाहर से कोई आता है तो वो देखे कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। सो दे आर ट्राइंग टू बूस्ट टूरिज्म आल्सो इन दैट वे। सो लाइक आई सेड, मेरी कहानियों का पर्पस है कि व्हेन टूरिज्म इन दीज प्लेसेस आल्सो शुड गेट बूस्टेड, एंड सी उस पैसे से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं होता, राइट? Right. व्हेन द लोकल्स सी कि उनको अपने चीजें प्रिजर्व करने से पैसा मिल रहा है, so eventually when tourists come, they spend Right. money, right? They see that people are valuing their culture, people are praising their culture, They're learning their culture. so automatically वो अंदर से आएगा कि उसको बचाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है ये एक तरीका है। Okay, so if we talk about, there are some tribe in India that are protected by government of India. और आपने एक recent news भी सुनी होगी that in Andaman Nicobar Island, one travel influencer goes there and got arrested because of some issues, because the tribe is very protective. So do you think being a travel influencer, there are some restrictions that we must follow? So what's your point on that? So in tribes को PVTG बोलते हैं, particularly vulnerable tribal groups. Okay, so वैसे जो नॉर्मल STs शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, उनके पास वैसे अपने राइट्स हैं, देयर लैंड्स आर प्रोटेक्टेड एंड एवरीथिंग इज देयर, वहां पे आप जाके लैंड नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, सो इन दैट सेंस दे हैव प्रोटेक्शन। बट these people that you are talking about are PVTs, particularly vulnerable tribal groups. वो कई रीजन से होते हैं, एक तो या तो उनकी कम्युनिटी बहुत छोटी रह गई है, या दे हैव वाइप्ड आउट इन लास्ट फ्यू इयर्स, या उनके कल्चर ट्रेडिशंस बिल्कुल ही खत्म होने वाले हैं या हो ही चुके हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट गिव्स देम अ PVTG स्टेटस। इनके साथ इंटरेक्ट करना, इनके साथ किसी भी तरीके का वीडियो बनाना, इनके साथ किसी विदाउट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट इज लीगली नॉट अलाउड। तो उसमें मेरा टेक होना ना होना कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज व्हाट इज इलीगल इज इलीगल, राइट? तो उसमें मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि हाँ मतलब चोरी करना इलीगल है बट मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ, नहीं कर सकते। इट इज लीगल, इट इज नॉट लीगल। सो आई वुड नेवर गो टू सच अ ट्राइब एंड ट्राई टू यू नो be with them or make a video until and unless I have like I go through right channels and I have that permission. अंडमान, अभी मैं अंडमान में था, I did some stories of Andaman tribes also, जैसे जाड़वा ट्राइब है। तो अंडमान की जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे दो particularly tribes हैं, one is Negrito tribes who are
Africa से migrated. So if you have seen they're black, they're black, they have those curly hair जैसे अफ्रीका की tribes के होते हैं, right? So वो 4 या 5 tribes हैं Negrito tribes और 2 Mongolite tribes हैं, right? They have those Mongolite features जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोगों के होते हैं. तो 2 ट्राइब्स वो हैं और 5 ट्राइब्स 5 ही हैं, आई थिंक 4 या 5 हैं, आई थिंक 4 एग्जैक्टली याद नहीं. Okay. तो वो around 20,000 years ago they came from started migrating from Africa and slowly they came to Andaman Islands and they settled. So they are actually the aboriginal people of there, जो बाहर अब से आए, ब्रिटिशर्स आए और ये वो जो उनको बीमारियां मिली जिसकी वजह से वो वाइप आउट हो गए, उन्होंने उनको स्लेव्स बना के काम करवाने पे लगाया, जिस वजह से बीमारियां हो के वो सब खत्म हो गए, इसीलिए पीवीटीजी है वो. Okay. Right. So that is the issue. So, but they are actual original people of that island, right? बाकी सब बाहर की गए हुए लोग हैं. So we are in fact going in their homes. तो we should be always respecting that. Respecting the culture and. हाँ, तो उसमें कुछ ट्राइब्स हैं जिसको particularly जो आप जिसकी बात कर रहे थे, वो तो totally restricted है. वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी नहीं जा सकते. 5 क्योंकि वो एक आइलैंड ही है, वो कॉर्डन ऑफ आइलैंड है, वहाँ पे नेवी 5 किलोमीटर दूर तक रहती है. तो कुछ लोग जैसे 4-5 साल पहले एक अमेरिकन जॉन चाओ वो भी वहाँ पे चला गया था एंड ही वाज किल्ड बाय दोस पीपल. अभी जैसे आप यू वर टेलिंग एन इंसिडेंट्स, कोई बोट वहाँ पे वो मछुआरों को और इनको पैसे खिला के रिश्वत दे के वहाँ पे चले जाते हैं. बट दिस इज इलीगल एंड दिस शुड नेवर बी इनकरेज्ड. मतलब आई एम टोटली अगेंस्ट इट. कुछ ट्राइब्स हैं वहाँ पे जो पार्टली फ्रेंडली हो गई हैं. दे आर स्टिल डेंजरस. दे वुड नॉट लाइक एनी आउटसाइडर कमिंग. दे इवन शूट एट देम. बट वहाँ पे धीरे धीरे गवर्नमेंट के अप्रूव्ड लोग जाते हैं. दे गो एंड स्टे विद देम. उनकी लैंग्वेजेस भी सीख चुके हैं सो दैट देयर इज अ कम्युनिकेशन. यू नो, उनको कोई बीमारियां हों तो दे कैन बी टेकन टू हॉस्पिटल्स. वो सब मैंने देखा अपनी आंखों से. आई कुड नॉट शूट इट बट मैं प्रॉपर परमिशन के साथ गया था. And I saw that happening and I did a story of that. उसमें मैं tribes तो नहीं दिखा पाया उनको, but I told the entire story. I met people who they attacked. उनके interviews है मेरे वीडियो में कि जिनको उन्होंने मारा था, जिनकी families को मारा था. And if you see, वो families भी खुद भी बोलते हैं कि मतलब उनकी गलती नहीं है. Because they are not aware ना. Because हाँ, मतलब it is actually our mistake कि हम उनके एरिया में जा रहे हैं. They are just saying don't come. So even they are sympathetic, even the people who got attacked. So that is the situation in Andaman. So we should respect and keep distance. तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है like you have faced this dangerous situation where you know sometimes are not that much friendly because as you just mentioned. तो कभी ऐसे कोई incident हुआ है आपके साथ में that you face kind of difficulties interacting with them or understanding them or maybe they misunderstand you, something like that? मैं एक बात बताता हूँ. तो ये PVTG वाला पार्ट तो हटा देते हैं because these tribes in Andaman they are like totally hostile. They don't want people to come and they, like I said they are PVTG. तो वहाँ तो मैं जाता भी नहीं हूँ. I went there with some local government authorities to do the story जो मैंने करी थी, but उसमें ना मैंने उनको दिखाया, उनके बैकग्राउंड में उनकी स्टोरी बताई. Okay. But normal tribes that I go to in many places, like अभी मैं छत्तीसगढ़ में था तो बस्तर में there are many tribes. बस्तर को लोग नक्सलाइट एरिया मानते हैं तो वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते. तो सब घबरा गए थे कि बस्तर क्यों जा रहा है. मैं 1 महीना वहाँ रह के आया. नॉर्थ ईस्ट में मैं टाइम स्पेंड करता हूँ. नॉर्थ ईस्ट में देयर हैज बीन सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एंड यू नो देयर हैव बीन इंसिडेंसेस पहले. अब पिछले 8-10 साल से कुछ भी नहीं है ऐसा, राइट. सो वो लोग हमेशा डराते हैं कि तू पागल है, अकेले जाता है, यू ट्रैवल अलोन, यू आर ऑन अ बाइक, यू गो टू दीस प्लेसेस एंड यू लिव विद देम. चाहे वो बस्तर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे छत्तीसगढ़ या जो भी. आई एम टेलिंग यू, उनसे ज्यादा फ्रेंडली और वेलकमिंग लोग मैंने कहीं नहीं देखे. Okay. ओके, सो जो लोग बोलते हैं उसका ऑपोजिट है. ऑब्वियसली इक्के दुक्के लोग हर जगह पे देयर विल बी सम पीपल. वो तो आप गुड़गांव में भी जाओगे तो आप नोएडा में हैं तो नोएडा में भी कुछ एंटी सोशल मिल जाते हैं. सो दैट इज नॉट अबाउट, दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, राइट. दोज वन ऑफ केसेस. इन जनरल वंस ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा सा दे आर स्केप्टिकल कि ये कौन है, हु इज कमिंग, है ना, क्या करने आया है, क्या शूट करेगा, हमसे क्या बात करनी है. बट वंस दे बिकम फ्रेंड्स, वंस दे नो कि मैं अच्छे इंटेंट के साथ आया हूँ, वंस आई शो माय फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स देम,
दे ओपन देयर हार्ट्स आउट, दे Like ओपन welcoming. देयर होम्स आउट। मैं उन्हीं के घरों में रहता हूँ, वो मुझे कहीं और रहने भी नहीं देते। मैंने तो ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं कि उनके आपस में बहस हो गई कि मैं इनके घर में हाँ. रहूंगा कि इनके घर में रहूंगा। राइट, सो दे आर द मोस्ट लवलीस्ट मोस्ट फ्रेंडलीस्ट पीपल। So that is nice. I mean, हमें तो पता ही नहीं था because we are not aware about these हम्म tribes and their हम्म culture, heritage. So जैसे कि अभी इंसिडेंट के मैंने बात बताया था आपने, तो if we talk about you have also one video of that कुंभ of Northeast, right? हम्म। तो वो स्टोरी कहाँ से आपको पता चला उसके बारे में? वो एक्चुअली अरुणाचल में एक बहुत फेमस जगह है। हम्म. सो लोहित नदी है, लोहित नदी के पास एक मंदिर है हम्म. परशुराम कुंड करके। सो वो बहुत बड़ी पिलग्रिमेज साइट है एक्चुअली। तो मकर संक्रांति पे जो 14 जनवरी, हम्म. वहां पे बहुत बड़ा फेस्टिवल और मेला ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें सारे तीर्थ करने के लिए पूरे इंडिया से लोग जाते हैं वहां पे। वाह. तो मैं अभी वहां पे था अरुणाचल में, लास्ट 2 मंथ्स आई वाज हम्म. देयर। सो आई विजिटेड दैट प्लेस। तब मुझे उसकी स्टोरी पता चली। तो उसकी उसकी जो स्टोरी है वो ये है कि जो परशुराम थे, आ, उनका कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था कि उनके पिताजी के कहने पे हम्म. उनको अपनी माँ को कुल्हाड़ी से मारना पड़ गया था। तो क्योंकि इतना बड़ा पाप उन्होंने किया, तो वो कुल्हाड़ी एज अ हम्म. पनिशमेंट उनके हाथ पे ही चिपक गई थी। तो वो उनका पेनेंस था, तो वो हमेशा कुल्हाड़ी उनके हाथ पे चिपकी रहती थी। फाइनली फिर बहुत सारे लोगों से बातचीत उन्होंने करी, तो कई ऋषि मुनियों ने उनको बोला कि आप तपस्या करने हम्म. वहां जाओ, वो लोहित नदी के पास। और वहां पे उसके बाद जब आप हाथ उस नदी में डालोगे, वही जाके आगे जाके ब्रह्मपुत्र बनती है लोहित। सो लोहित इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। ओके. इट्स अ वेरी माइटी रिवर, बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रिवर है। वो देखोगे तो ऐसा लगता है कि उसमें जाके जब उन्होंने हाथ डाला था, तो फिर उनको अपने उस श्राप से मुक्ति मिली थी। तब वो कुल्हाड़ी उनके हाथ से छूटी थी। तो वहां पे वो तीर्थ स्थल बना हुआ है। तो वहां पे संक्रांति पे लोग जाते हैं टू वॉश अवे देयर सिंस। जैसे गंगा जाते हैं, तो वैसे कुंभ में जाते हैं लोग, इसलिए उसको कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ओके. तो आप कोई ऐसी प्लेसेस रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि जो उनमें मतलब जाननी चाहिए, या फिर ऐसे कोई ट्राइब्स के बारे में जहाँ पे उन्हें विजिट करना चाहिए? बिकॉज अभी क्या होता है, वी वांटेड टू अवॉइड क्राउड, राइट? अगर कोई भी हम प्लेस पे जा रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, और फिर होता है थोड़ा सा यू फील कि फिर क्या ही फायदा अगर ट्रैवल करने का, यू हैव टू फेस ऑल क्राउड. सो डू यू वांटेड टू गिव सम रेफरेंसेस अबाउट एनी प्लेसेस और एनी ट्राइब? मेरे लिए तो सारे ही क्लोज है। कोई एक बोलना मुश्किल है। बट जैसा मैं बोल रहा था कि आई ट्राई टू गो टू दीज प्लेसेस जहाँ पे लोग जनरली नहीं जाते। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इफ आई टॉक अबाउट अरुणाचल, आई टॉक अबाउट मणिपुर, आई टॉक अबाउट मेघालय, तो फिर भी लोग जाते हैं बिकॉज वो गुवाहाटी से इजीली एक्सेसिबल है। तो मेघालय लॉट ऑफ पीपल गो। बट प्लेसेस लाइक मणिपुर, प्लेसेस लाइक अरुणाचल, सिक्किम भी काफी लोग जाते हैं। प्लेसेस लाइक नागालैंड, वहाँ पे इतने कल्चर्स, इतनी ट्राइब्स अभी भी इंडिजिनस कल्चर फॉलो करते हैं। तो यू कैन सी दोज, एक्सपीरियंस दोज। कहीं हिमाचल के अंदर इफ यू गो, तो आप उत्तराखंड में जा रहे हो, तो वहाँ पे शेफर्ड ट्राइब्स है, गद्दी ट्राइब्स जो रहते हैं, जो वो 4 से 6 महीना पहाड़ों में रहते हैं ठंड के टाइम, और वो अपनी लाइफ बर्फ में बिताते हैं। उनकी इतनी टफ लाइफ है, वो लोग भी वहां पे रहते हैं। यू कैन, अगर आप किसी पहाड़ में जा रहे हो, हिल स्टेशन में जा रहे हो, ट्राई, जब आप वॉक पे निकल रहे हो या हाइक पे निकल रहे हो, ट्राई इंटरेक्टिंग विद दोस पीपल। दे विल वेलकम यू टू देयर होम्स। वो आपको अपना लोकल खाना खिलाएंगे, बिठाएंगे। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, बस्तर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि, मैं सिर्फ कल्चर की वजह से गया था कि मैं बस्तर में ट्राइब्स हैं तो आई विल गो फॉर देयर स्टोरीज। इतनी खूबसूरत जगह है बस्तर, मतलब इट इज अ लैंड ऑफ वाटरफॉल्स। वाओ. हर कोने में इतनी सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं, इतने सुंदर लैंडस्केप्स हैं। आप वहां जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। मतलब इट इज लाइक विजुअली आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और अब तो वहां पे सड़कें भी इतनी अच्छी बनी हुई हैं, कोई खराब सड़क नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब मेरे चैनल पे देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी ट्राइब्स, राइट. सो मेनी लोकेशंस व्हिच पीपल कैन सी एंड गो टू। 2-3 तो मैंने अभी बताई, बट उसके राइट. अलावा भी बहुत कुछ है। Okay, so we must follow Shiva Tells to explore all these शिवा places. टेल्स। Right. So, what your point on Manipur? I think what's the situation right now? You have visited Manipur and you have made videos on Manipur. So, सो मणिपुर की सिचुएशन, अभी मेरी कल ही बात हुई थी। इनफैक्ट समबडी कॉल्ड मी फ्रॉम देयर बिकॉज आई वाज देयर फॉर 1 मंथ। और अभी 1 साल पहले पीक टाइम में मैं वहां पे था, जब बहुत सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक थी। आई हैड गॉन देयर एंड आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 3 to 4 weeks। एंड उसमें मैं दोनों साइड पे जाके रहा।
I went to the Kuki side, जो कुकी ट्राइब है, which is the hill tribe, और I stayed with the Meiteis, which is the valley. और दोनों के साथ में जाके रहा, and only an outsider can do that because अभी जो situation है उसमें ये है कि Meiteis now cannot go to Kuki areas, Another Kukis Kuki cannot come to Meitei areas. तो बहुत sensitive situation है because ऐसा होते ही then there is killings and war starts happening. तो उसमें मैं आई वेंट टू देयर रिलीफ कैंप्स, मैं उनके रिलीफ कैंप्स में जाके विजिट किया, उन लोगों के व्यूज लिए। मैं उन घरों में गया जिन घरों में बॉम्ब्स गिरे, जिनके लोगों की पीपल इन देयर फैमिली हु डाइड, जिनके घरों में शेल्स, बॉम्ब शेल्स के निशान है जो उन्होंने मुझे दिखाए, वो सब मेरी स्टोरीज में, एंड उनसे मैंने बातें करी। तो इसमें अगर मैं एज एन आउटसाइडर अगर व्यू की बात करूंगा, दोनों तरफ उतना ही पेन है, मतलब, और दोनों की कहानी यही है कि सामने वाला गलत है, राइट? बट एक्चुअल प्रॉब्लम वो है ही नहीं, जो आम जनता है उसको तो वॉर से कोई मतलब भी नहीं है, दो नाउ, बिकॉज वो इतना ज्यादा पॉइजन दिमाग में भर चुका है कि वो गलत है, वो गलत है, कि वो आर्म्स उठाने लग गए सिविलियंस भी। बट प्रॉब्लम इज नॉट दैट, मतलब क्योंकि ये ट्राइबल वॉर्स डू यू थिंक कि आज से चल रहे हैं? दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस। और ट्राइबल वॉर्स, क्लैन वॉर्स हर ट्राइब में हर जगह पे होते ही आए, बट दे गेट सॉल्व्ड। This is a geopolitical issue, right? Powers from outside our country are funding this war, right? They are giving weapons to both the sides, and that is being played on. उसमें local बेचारी public फंस रही है और एक दूसरे से नफरत करके एक दूसरे को मार रही है। So it is not the local people. उनमें तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है, दोनों के लोग मरे हैं, दोनों की तरफ से लोगों ने एक दूसरे को मारा है, दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और सेम कहानी बताते हैं। Okay. So, and we have seen in your videos that 60% of your content is actually probably on the northeast and the hilly mountain areas. So, it's your favorite places or something like that? जो चीजें, मतलब जो जगहें जितनी ज्यादा इनएक्सेसिबल होती हैं, वहां पे स्टोरीज उतनी ज्यादा इंटैक्ट रहती हैं, राइट? Okay. तो अगर आप माउंटेन्स की बात करोगे तो जितना एक्सट्रीम आप पहाड़ों में जाओगे उतने ही आपको लोकल कल्चर देखने को मिलेंगे। सेम चीज नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इन जनरल अनएक्सप्लोर्ड रहा है, राइट? जनरली जैसे मैंने बोला कि मेघालय और सिक्किम तो लोग जाते हैं, बट उसके अलावा नहीं जाते लोग। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं नॉर्थ ईस्ट जाता हूँ। बट मैं जब नॉर्थ ईस्ट गया तो वहाँ पे मेरे को, मतलब, इतना प्यार मुझे लोगों से मिला, प्लस मुझे खुद इतना उस जगह से प्यार हो गया कि मैं बार बार जाता हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे इतना कुछ अभी भी है। जैसे हम सिर्फ अरुणाचल की बात करें तो उसमें 26 इंडिजिनस ट्राइब्स हैं एक स्टेट में। पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो हम सिर्फ एक इमेज इमेजिन करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मतलब एक अलग Right. वन स्टेट। इट इज 8 स्टेट्स, हमारी टोटल 29 स्टेट्स हैं शायद। सो इमेजिन, इट इज ऑलमोस्ट 30% in number of states, not population, but 30% of the states are northeast. So can you imagine the kind of diversity and culture and beauty they have? सिर्फ अरुणाचल में, like I was saying, there is 26 tribes, 100 sub tribes, सबका अपना फेस्टिवल है, सबकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, सबके अपने गाने हैं, सबके अपनी फोक टेल्स हैं, सबकी अपनी स्टोरीज हैं, माइथोलॉजीज हैं। तो मैं वहां पे जाता हूँ तो कहानियां खत्म ही नहीं होती। There are still many places that are unexplored. बहुत सारी। मैं अभी तक 8 में से 4 ही स्टेट्स जा पाया हूँ, 4 तो अभी तक जा ही नहीं पाया, 3 साल से जा रहा हूँ। एंड लाइक यू सेड, स्टिल 60% ऑफ माय कंटेंट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। फिर भी मैं 4 स्टेट से ज्यादा जा ही नहीं पाया हूँ। सो यू कैन इमेजिन द डेप्थ ऑफ कल्चर दैट दे हैव, एंड एवरी स्टोरी देयर इज ब्यूटीफुल। राइट। सो अगर एक चीज़ हम अपने इंडियंस के बारे में बात करें तो ये होता है कि वी एक्सप्लोर प्लेसेस, बट एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो ये चीज़ है कि उस चीज़ को संभाल के रखना। देखिए, वी आर द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर इंडिया, तो उसको साफ रखना वो चीज़ हमारी जिम्मेदारी होती है एज अ टूरिस्ट। और जब हमने एक चीज़ पैटर्न देखा है दैट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं तो पीछे पीछे जैसे भीड़ जाती है, लाइक क्राउड, लाइक हाँ वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ना वो गंदगी कर देते हैं। एंड फिर उसके बाद जो लोकल पब्लिक होती है, लोकल लोग होते हैं, उनको बहुत दिक्कतें आती है। दैट्स व्हाई दे स्टॉप टूरिज्म, राइट? It's not their fault. So being a travel influencers, and do you think other people who are being a travel content creator, they should also mention that if you're coming in this state and you're coming in this place, you must follow the rules, you must keep this city clean. So what's your point? यार, ये
बेसिक सिविक सेंस है ना, इसके अंदर ट्रैवल का कोई फंडा ही नहीं है। मतलब दिस इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रैवल, दिस इज लाइक अ पर्सनल सिविक सेंस। अभी भी अगर तुम देखोगे, नोएडा में हम बैठे हैं, दिल्ली में इट इज लाइक द कैपिटल ऑफ इंडिया, आप इंडिया गेट के आसपास भी देखोगे गाड़ी से कोई जा रहा है ना, कोई बच्चा है फ्रूटी का डब्बा बाहर फेंक देगा, बड़ा भी है वो सिगरेट बट बाहर फेंक देगा गाड़ी चलती हुई से, तंबाकू का पैकेट फेंक देगा, चिप्स का पैकेट फेंक देगा चलती गाड़ी से। इट इज दे आर नॉट ट्रैवलिंग, राइट, दे आर जस्ट गोइंग इन अ कार फ्रॉम देयर होम टू ऑफिस या वापस। तो ये बेसिक सिविक सेंस तो हर इंसान को होनी चाहिए। मतलब ये तो वो वाली बात होगी, आप सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो अभी इसको कैसे समझाओ किसी को, मतलब ये एक बेसिक सिविक सेंस तो बार बार रिपीटिंगली लोग आजकल बोल रहे हैं। लॉट ऑफ people are doing that, lot of influencers are also trying to give that repeated message की, but जो कई कम्युनिटीज हैं, जैसे हिमाचल में भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं, स्पेशली वो ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें दे आर लाइक क्लीनिंग ट्रैक्स, मतलब दे विल टेक यू फॉर अ ट्रैक, पर उसमें ये होगा कि आपको वापस आते टाइम 5 किलो कचरा अपने साथ लेके जाना है। तो ट्रैक भी हो जाएगा और साथ में हर एक के पास एक बोरा रहता है, वो वापस आते आते कचरा लेके आते हैं, अपना नहीं दूसरों का भी। तो इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। मैंने अभी क्लीन विलेज के बारे में बताया, ऐसे कई क्लीन विलेजेस मैंने देखे हैं, उनकी स्टोरीज भी करी है, जहाँ पे इस तरीके से टू इंस्पायर पीपल एंड सो दे डोंट डू दिस। पर उसके अलावा एक और चीज है कि लोकल अथॉरिटीज को भी इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, राइट, क्योंकि हर किसी में सिविक सेंस नहीं घुसा सकते आप। ये यही चीज है कि बिकॉज हर तो कोई, अगर हम यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ भी दे जस्ट थ्रो द डस्टबिन, और वो बच्चे भी करेगा तो उसको टोकेंगे नहीं। स्ट्रिक्ट फाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप कचरा कर रहे हो तो फाइन होना चाहिए उसके ऊपर। Definitely. उसके बिना, जैसे अगर आप हेलमेट के बिना जा रहे हो, सब लोग हेलमेट लगा ही लेते हैं, चाहे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कोनी पे लगा लेंगे, बाद में सर पे लगा लेंगे, बट लगा तो लेते हैं, एटलीस्ट उनके दिमाग में तो है ना कि गलत है। तो वो एक लोकल अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट स्ट्रिक्टली बहुत जरूरी है। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स विल probably make a change. Okay, so at last, any message you wanted to give to the viewers about the travel content creation, storytelling, or maybe you wanted to recommend some things to the person who wanted to become a travel influencer? Uh, मतलब मैसेज इन सेंस ऑफ somebody who's wanting to become, Right. उसमें 2-3 चीजें हर एक को ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो डोंट थिंक कि इट विल बी एन इंस्टेंट फेम। सबको यही लगता है कि आज मैंने कैमरा उठाया और आज मैंने वीडियो बनाया, कल मैं वायरल हो जाऊंगा। इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स ऑफ एफर्ट, खून पसीना पैसा सब लगता है। सो बी प्रिपेयर्ड कि आपको 3-4 साल तक उसके अंदर एक एक वीडियो बनाने के अंदर इतनी एफर्ट लगती है, एडिटिंग होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, साउंड होती है, वहाँ जाना होता है, लोगों से रिसर्च होती है, मिलना होता है, सही इंफॉर्मेशन देनी होती है, राइट। सो ये सारी चीजें करना कोई आसान नहीं है। तो और उसके बाद भी वीडियो के व्यूज नहीं आते, 100-200 लोग देख रहे हैं तो मन दुखता है। सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी जर्नी। पहले तो मेंटली बी प्रिपेयर्ड, सेकेंड फाइनेंशियली बी प्रिपेयर्ड। आइदर डू इट पार्ट टाइम, इफ यू कांट डू इट पार्ट टाइम, अगर आपको फुल टाइम ही करना है कंटेंट क्रिएशन, देन हैव अ बैकअप प्लान कि आपने 1-2 साल का पैसा सेव करके रखा हुआ है। या फिर तीसरा तरीका दैट यू आर डूइंग सम साइड हसल, फ्रीलांसिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ इस तरह की चीजें। तो आपको ये 2-3 चीजों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, एक मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, लाइक आई सेड, एंड देन फाइनेंशियली। सो इन सारे एस्पेक्ट्स में आपको बहुत पेशेंट होके चलना पड़ेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आज आपने कुछ बोला और कल आप वायरल हो, ऐसा नहीं होगा। Okay. Thank you so much, sir, for joining on our talk show and having such an interactive session about all experience of being a content creator, of storytelling, and telling us about different cultures, heritages, and a lot of that. Thank you so much. My last message is I always give in my video is khushiyan always. So that's how I end my video. So khushiyan always, everyone. Khushi always. Thank you so much, sir. Thank you. We will be back with another episode. Keep watching our talk show Rubaru.